Good morning, all of you. We are going to continue the chapter that we were doing. That is types vegetation, natural vegetation, and wildlife of India. Natural vegetation and wildlife. So we are studying about India. That how is the pattern of vegetation and wildlife. So in yesterday's class, we studied about the factors which affects vegetation in India, and now we will see which type of vegetation is found. Yesterday, I taught you about that there are five types of vegetation which are found in India. One is tropical evergreen forest, second is tropical deciduous forest, third is tropical thorn forest, then montane and mangrove forest. So these are basically the five types of categories of forest which are found in India. Now, first of all, we will start with the first type, that is tropical evergreen forest. Now, I have already explained to you about this, I think, in the yesterday's class. Yes or no? Tell me, children. I have explained to you this topic now in yesterday's class. Yes, ma'am. Yes. So basically, tropical evergreen forest are known as evergreen or sadabahar because they never, the trees, all the trees in the forest never shed their leaves altogether. जितने भी पेड़ इस जंगल में होते हैं वो एक साथ अपने उसमें पतझड़ नहीं आता है। इसीलिए ये जो जंगल होता है हमेशा हरा भरा नजर आता है, इसलिए हम इसको सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। एंड देयर इज नो मतलब कि नो डिफिनेट टाइम टू शेड लीव्स, मतलब पतझड़ तो होता है लेकिन कोई डिफिनेट टाइम नहीं होता है। ऑलराइट, लाइक कुछ पेड़ जो होते हैं एक बार पत्ते उनके गिरते हैं तो जब वो सड़ जाते हैं फिर कुछ टाइम बाद कुछ और तो इससे क्या होता है कि पूरा वन जो है हमेशा हरा भरा ही नजर आता है क्योंकि एक साथ नहीं होता है, इसलिए हम इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। And they are found in those areas in the world and in India which receives high rainfall, high temperature like 27 degrees centigrade. Then these trees are very they reach up to great height, sometimes above 60 meters. Then they are in multi-layered structure. Multi-layered structure क्या होता है ये मैंने आपको कल ही बताया। ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट हाइट के पेड़ मिलते हैं, लाइक 5 मीटर, 20 मीटर, 40 meter, and sometimes the trees reach up to 60 meters and above. So this is pattern is known as multi-layer pattern, and number of layers इसको हम कहते हैं। So it consists of all different types of vegetation, and it is very dense forest, बहुत घना हो रहा है और इसके अंदर गर्मी बहुत होती है। it is warm and humid area। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा इसमें जो है उमस होती है। Now this is the map जो मैंने आपको कल बता दिया था, लाइक दे आर फाउंड इन द दोज एरियाज इन इंडिया विच रिसीव हेवी रेनफॉल लाइक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, देन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, then parts of West Bengal. So then Northeast India, where you can see Northeast India. So these areas have evergreen forest in India. Now some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and shinkona. So you have to remember these varieties of trees which are found in this type of forest because MCQ में ये आ सकता है, like ebony, mahogany, rosewood, rubber and shinkona, they are part of which type of vegetation. So you should know that they are part of evergreen forest. Now the common animals found in these forests are, now कौन से animals इसमें पाए जाते हैं? Elephants, monkey, lemur and deer. One horned rhinoceros are also found in the jungles of Assam and West Bengal. Besides these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are also found in these jungles. So these are the varieties of animals. In fact, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी बिकॉज वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की डिफरेंट स्पीसीज मिलती है जो और दूसरे फॉरेस्ट में नहीं मिलती है। बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट की देखो एक पॉजिटिव बात क्या है कि इट इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे ह्यूमन एंक्रोचमेंट कम होता है, ह्यूमन बींग्स यहाँ कम पहुँच पाते हैं, इसलिए ये फॉरेस्ट अपने नेचुरल जो कंडीशन में मेंटेन होते हैं और जो इसमें एनिमल रहते हैं वो भी सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। वो फॉरेस्ट जो कि ओपन होते हैं उसमें इंसान आसानी से पहुंच जाता है और उन जंगलों को काट देता है और जानवरों को भी जो है हंटिंग दे किल द एनिमल्स आल्सो। और अगर उन्होंने जंगल काट दिया तो फिर उसमें जो एनिमल्स रहते हैं वो भी जो है उनका भी एक्सटिंक्शन होने लग जाता है।
So this was the first type of forest. Second is tropical deciduous forest. Now it is opposite of evergreen. जैसे एवरग्रीन हमेशा हरा भरा रहता है, डेसिडुअस जो होता है ये हमेशा हरा भरा नहीं रहता है, इसको हम पर्णपाती वन कहते हैं, क्योंकि ये जो जंगल होते हैं इनमें सारे के सारे पेड़ एक समय में एक ही साथ सारे के सारे पत्ते उनके गिर जाते हैं. दे शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर इन अ ड्राई सीजन, क्योंकि जहाँ पे भी ये वन पाए जाते हैं वहाँ पे 6 से 8 हफ्तों के लिए काफी सूखे का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है, सूखे का मौसम होता है, बारिश नहीं होती है. तो इन 6 से 8 हफ्तों के लिए, मान लो 1-2 महीने का जो टाइम होता है उस समय, और ये 2 महीने का टाइम और एक्सटेंड भी हो सकता है अगर बारिश नहीं हुई तो. सो बेसिकली फॉर 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, जब बारिश नहीं होती है, सो ऑल द ट्रीज इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट दे शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, सबके सब पत्ते एक ही साथ उनके गिर जाते हैं. तो इसीलिए ये जो फॉरेस्ट होता है वो काफी खाली खाली से नजर आता है, काफी बैरन नजर आता है, मतलब लगता है सिर्फ पेड़ खड़े हैं और पेड़ों में जो है पत्तियां नहीं है, बिल्कुल सूखे हुए हैं, ड्राई हैं. तो ये सारी जो है कंडीशंस आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलती है. नाउ दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ये जो अगर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं तो वो कौन से हैं आपके? पर्णपाती वन. यू कैन सी इन द मैप, लाइक देखिए, मैक्सिमम एरिया इज अंडर द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. दिस इज द light blue color shaded area. So you can see that in maximum part of India, or the land is under deciduous forest. बिकॉज मैक्सिमम पार्ट में जो है इंडिया में बारिश कम होती है, और बारिश कम होने की वजह से डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं. जैसी बारिश होगी वैसे ही आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. तो these forests are also known as monsoon forest. They are most widespread in India. And then ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल 70.
बच्चों ये कनेक्शन कट हो गया क्या? यस मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस चिल्ड्रन कैन मैम। यू हेयर माय वॉइस? नहीं, अभी बीच में कनेक्शन कट गया था क्या? बताइए। यस मैम। यस। हेलो, हाँ, ओके, ठीक है। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। नहीं, वो हॉर्न वाला। ओके, ठीक है। बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? यस मैम। यस मैम। यस और नो, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। तो अभी Yes, जस्ट मैंने ma'am. थॉर्न फॉरेस्ट जो है, यस, सो अभी आपकी क्लास के स्टूडेंट का फ़ोन था, वो बता रही थी कि आवाज़ नहीं आ रही है। सो वी विल कंटिन्यू विद द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ऑलराइट, नाउ थॉर्न फॉरेस्ट एज द नेम सजेस्ट दे आर द कांटेदार वृक्ष, है ना, वो पेड़ पौधे जिसमें कांटे होते हैं, लाइक कैक्टस आपने सुना होगा, बबूल है, उसमें कांटे होते हैं। या फिर झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं, इस टाइप की फॉरेस्ट उन एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होती है। ठीक है, मैंने आपको मैप पे अभी दिखाया था, लाइक यू कैन सी पार्ट्स ऑफ राजस्थान, देन एंटायर गुजरात एंड देन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. This area receives very less rainfall because they are found in the rain shadow areas. And so सो बिकॉज दे आर इन द रेन शेडो जोन, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे वो पेड़ सर्वाइव कर पाते हैं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। और तो इन्हें हम थॉर्नी ट्रीज कहते हैं एंड बुशेस कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें, जो रूट्स होती हैं, दे आर वेरी लॉन्ग एंड दे कैन, सो दैट दे कैन पेनिट्रेट डीप इनसाइड द अर्थ एंड दे कैन टेक वाटर फ्रॉम देयर। मतलब अब बहुत ही लंबे भी नहीं होते, लेकिन मतलब ठीक ठाक होते, जितना हद तक उनको पानी मिल जाए नीचे से। सो दे हैव लॉन्ग रूट्स, देन उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो भी काफ़ी थिक होती हैं, स्टेम भी काफ़ी थिक होते हैं, ताकि जो वाटर लॉस होता है उसको वो रोक सकें। मतलब जितना वो पानी अगर आप उन्हें दोगे, तो उस पानी से काफ़ी लंबे समय तक जो है वो अपना काम चला सकते हैं। ऑलराइट, सो दे कैन रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये खासियत है जो थॉर्न फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो स्क्रब्स हैं वहाँ पे। और ये कहाँ पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, दे आर फाउंड इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी and Haryana. So they are the dry areas of India basically, which you have seen in the map. Now the trees which are found here are acacias, palm, euphorbias, and cactus. These are the important variety of plants which are found here. Now trees are scattered. यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको मेनली झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और ट्रीज जो होते हैं काफ़ी दूर दूर तक स्प्रेड होते हैं. Then they have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. तो इनके जो मैंने अभी आपको बताया कि these trees or plants, they have long roots, so that they can penetrate deep into the soil and they can get moisture from there. Then stems जो होते हैं वो भी काफ़ी thick होते हैं, तो so that they can conserve water. Leaves are also very thick. आपने कैक्टस का पत्ता देखो काफ़ी थिक होता है, ताकि इवापोरेशन कम हो. देन यहाँ पे आपको झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी. इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड camels. So these are the important varieties of trees. Here कुछ झाड़ियाँ भी मिलेंगी, देन कैक्टस है. सो बेसिकली आपके बबूल हो गया, है ना, ये सब आपके पेड़ मिलते हैं वहाँ पर. Now, next is mountain forest. Mountain forest की एक खासियत है, पहले बता रही थी, आप देख लीजिए, लाइक ये माउंटेन is the type of vegetation. मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही. ओके, आई विल सेंड द वीडियो, तो आप वीडियो में सुन लीजिएगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ. ठीक है, अभी सुन लो, बस कुछ मिनट बचे हुए हैं. सो as we move upward from the mountain, as
the height increases, the type of vegetation changes because क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट ठंडा हो चला रहा है, तो इसीलिए जो है मॉडर्न फॉरेस्ट जो हम कह रहे हैं कि इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है मॉडर्न फॉरेस्ट विद द चेंज इन द एलिवेशन, विद द चेंज इन द हाइट एज वी मूव अपवर्ड, द टाइप ऑफ वेजिटेशन changes. Now, in the mountainous areas, the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. As such, there is a succession of natural vegetation belt in the same order as we see from tropical to tundra region. Now, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वैरायटी ऑफ जो है फॉरेस्ट चेंज होता है. सबसे नीचे की हाइट पे 1000 एंड 2000 की हाइट के ऊपर आपको वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट. तो मतलब जितना आप माउंटेन के नीचे रहोगे 1000 2000 की हाइट पर, वहाँ पे आपको ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनके पत्ते काफ़ी चौड़े होते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेगा और पत्ते उनके काफ़ी चौड़े होते हैं, लाइक ओक एंड चेस्टनट. देन उसके ऊपर आप जाओगे 1500 और 3000 की हाइट के ऊपर, तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट ठंडा होता चला जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है. तो उसमें कौन से पेड़ मिलते हैं? कॉनिफरस, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते जो होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं, ताकि उनके ऊपर स्नो जो है रुके नहीं. लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सिडार, ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ trees हैं which are found between the height of 1500 to 3000 meters. देन ये जो फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, ये हिमालय में पाए जाते हैं ऑन द सदर्न स्लोप्स. जो हिमालय का साउथ का स्लोप है वहाँ पे आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. एंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स है वहाँ पे, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे आपको मिलेगा. देन एट उससे भी ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपको वेजिटेशन की जगह क्या मिलेगा? ग्रासलैंड्स. मतलब वहाँ पे फिर पेड़ नहीं सर्वाइव कर पाते, वहाँ पे सिर्फ आपको ग्रासेस मिलेंगे, ग्रासलैंड्स. देन 3600 की जो हाइट होती है वहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स की जगह आपको देन एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, लाइक सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्चेस, ये सब कॉमन ट्रीज होते हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं. देन जितना आप मतलब ऊपर जाते जाओगे, जो टाइप ऑफ वैराइटीज है, जो स्पीसीज ऑफ ट्रीज है, वो बदलती जाती हैं. और उसके बाद फिर फाइनली आपको क्या मिलता है? ओनली जो आपकी कुछ झाड़ियाँ होती हैं या कुछ श्रब्स होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, वो आपको मिलते हैं. सो आप ये देख सकते हो किस तरह से जितना हम ऊपर हाइट में जाते हैं उतना ही आपका जो है टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज होता जाता है. नाउ इंडिया में जैसे कि आपके नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, लाइक गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, वो जो है माउंटेन्स पर ऊपर नीचे मूव करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू सीजन. जैसे यहाँ पे दिया होगा, जैसे गर्मियों के मौसम में ये जो ट्राइब्स होती हैं वो क्या करती हैं? पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं, जहाँ पे उनको हरी भरी घास मिलती है उनके जो कैटल्स हैं उनके लिए. और जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है वो पहाड़ से नीचे की तरफ आ जाते हैं प्लेन एरियाज में, क्योंकि फिर पहाड़ों पे बहुत जो है ठंड होती है. नाउ द कॉमन एनिमल्स विच आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ एरिया इज लाइक इन द माउंटेन फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, लाइक इट इज़ अ वैरायटी ऑफ डियर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप मिलती है वहाँ पे, जैक रैबिट, देन तिब्बतन एंटीलोप, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ibex, deer and rare red panda, sheep and goats. ये सारे ही एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो होते हैं काफ़ी थिक हेयर होता है, काफ़ी थिक फर होता है इनका, जो इनको ठंडे मौसम से बचाता है. तो आज जो है हम इतना कंप्लीट करेंगे टिल माउंटेन फॉरेस्ट. बाकी जो है हम नेक्स्ट जो है क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, देखती हैं आप कितना बता पाते हो. बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? चिल्ड्रन, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, ma'am. ma'am. ओके. तो चलिए, जो भी आपको पढ़ाया गया आज, मैंने क्या पढ़ाया? ट्रॉपिकल डेसिडुअस बताया. देन आपको मैंने देन कौन सा बताया? फॉरेस्ट, माउंटेन, थॉर्न. अच्छा, मैं आपको एक मैंग्रोव भी बता देती हूँ कि थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ है. मैंग्रोव फॉरेस्ट. नाउ मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दे आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज. जो भी आपके समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भी खारा पानी पाया जाता है, खारा पानी और फ्रेश वाटर मिक्स होता है, वहाँ पे आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. और जहाँ पे टाइड्स, ज्वार है ना, समुद्र में ज्वार उठता है ना, टाइड्स होते हैं, वहाँ पे ये फॉरेस्ट आपको मिलते हैं. देन यहाँ पे मड एंड सिल्ट जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत सी नदियाँ भी आके यहाँ पे अपना सिल्ट डिपॉजिट करती हैं, तो यहाँ पे काफ़ी, जहाँ भी जंगल पाए जाते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी मड और सिल्ट देखने को मिलेगा.
Then dense mangroves are the common varieties with roots of the plant submerged under water. जो इनकी जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं और पेड़ जो होता है वो ऊपर की तरफ निकला होता है, लाइक हियर यू कैन सी, ये देखिए इनकी जड़ें हैं जो वो पानी के अंदर हैं, बाकी जो है पेड़ ऊपर की तरफ निकला हुआ है. देन ये द डेल्टास ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी, जो भी इंडिया में डेल्टाइक एरियाज है, गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, वहाँ पे आपको इसी तरह के पेड़ मिलेंगे जिनको हम मैंग्रोव कहते हैं. इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जहाँ पर भी गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है ना, आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया जहाँ पे डेल्टा बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियाँ आके आपस में मिलती हैं और इससे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है. तो ये एरिया काफ़ी रिच होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है क्योंकि सेटलमेंट से भरा होता है. तो यहाँ पे आपको जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा, मतलब सब लार्ज ह्यूज कवर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट. और वहाँ पे एक वैरायटी है मैंग्रोव की जिसको हम कहते हैं सुंदरी. सुंदरी के पेड़ वहाँ पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, इसीलिए उस पूरे वन को हम सुंदरबन भी कहते हैं, सुंदरबन. और गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है. तो क्यों कहते हैं सुंदरबन डेल्टा? बिकॉज सुंदरी नाम से सुंदरबन पड़ा है. सुंदरी इज एक टाइप का पेड़ होता है, ठीक है, और उस पेड़ से जो है वो एक मैंग्रोव वैरायटी का पेड़ है और सबसे अधिक मात्रा में वो वहाँ पे पाए जाता है. ना इम्पॉर्टेंट जो आपके पेड़ है वो कौन कौन से पाए जाते हैं? टिम्बर भी यहाँ पाया जाता है, पाम, कोकोनट, क्योरा, तो मतलब मैंग्रोव तो पाया जाता है, साथ साथ ये सब पेड़ भी वहाँ पर पाए जाते हैं. Now the important animal which is found here is Royal Bengal tiger, then turtles, crocodiles, घड़ियाल and snakes. ये सब जो है animals अंडर वाटर ये भी वहाँ पे मिलते हैं. बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है वो कवर कर लिया है. नाउ ये आपके कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं लाइक विच वी कैन यूज, लाइक सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार. सो दीज आर द सम ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स और इनके जो भी यूजेस हैं आप ये जो है इसको पढ़ लीजिएगा. लाइक सर्पगंधा जो है ये ब्लड प्रेशर क्योर करने के लिए यूज़ होता है. देन जामुन जो होता है इससे हम इसको डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं. जो जामुन के जो बीज होते हैं उनको ड्राई करके उनको उसको पीस कर अगर हम कंज्यूम करें पानी के साथ तो वो डायबिटीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं. देन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है. अर्जुन की छाल जो होती है, आप कई बार सुनोगे आजकल तो बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन का ज़माना है, तो ये नीम है, तुलसी है, ये सब जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो हमारे देश में जो है आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अभी तो हमने फ्लोरा कवर किया, मतलब जो हमारी जो भी हमारी फॉरेस्ट कवर है उनको हमने कवर किया है और नेक्स्ट क्लास में हम वाइल्ड लाइफ को जो है कंप्लीट करेंगे. सो बस मैं 1-2 मिनट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ के देखती हूँ आप उसका आंसर बता पाती हो या नहीं बता पाती हो. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में विच स्पीसीज ऑफ ट्री ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया? भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सा वन फैला हुआ है? बताइए. तन्मय बताओ. मैम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. वेरी गुड, तन्मय ने बहुत अच्छा आंसर दिया. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वेरी गुड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हमने किन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 2 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से हैं? बताइए. अनुज प्याल बताइए आप. यस, अनामिका बताइए. मैम मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ओके, वेरी गुड. मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. ये किस बेसिस पे हमने किया इनको क्लासिफाई? डेसिडुअस फॉरेस्ट को हमने मॉइस्ट एंड ड्राई किस बेसिस पे डिवाइड किया है? मैम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वेरी गुड. और रेनफॉल, ठीक है. तो रेनफॉल किस जितना हो रहा है उस हिसाब से हमने इसको डिफरेंशिएट. ओके, देन टेल मी विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर? कौन से वनों में मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है? आप सभी क्या सो रहे थे क्या जब पढ़ाया जा रहा था? मैंने कल की क्लास में बताया, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही आपने बताया. ओनली वन चाइल्ड गिवन द आंसर. आर्यन वर्मा आप बताइए. आर्यन वर्मा.
रिप्लाई नहीं करेगा फिर उसको मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी। इसका मतलब है कि आप सिर्फ क्लास में प्रेजेंट नहीं होता, आपको आता है नहीं आता उस मतलब नहीं, लेकिन आपको यू हैव टू मुझे रिप्लाई करना है कि मैम नहीं आता है। आर्य वर्मा, यू नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी आप लोगों को। फिर लक्ष्य बताइए। Tropical evergreen forest. यस लक्ष्य, व्हाट इज द आंसर? Tropical evergreen forest. क्या कह रहे हो आप? Ma'am, यस tropical ट्रॉपिकल evergreen एवरग्रीन forest. फॉरेस्ट। यस मैंने सुन लिया। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं दे हैव मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, डिफरेंट हाइट ऑफ ट्रीज आर फाउंड देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज western part of Western Ghats, then in India, then northeastern India, और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सारी प्लेसेस पे कौन सा टाइप का फॉरेस्ट मिलता है? या शीतल ने की बताइए। मैम मैंग्रोव शीतल, फॉरेस्ट। मैंग्रोव। ओके, साक्षी आप बताइए क्या ये सही है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो शीतल ने ट्राई किया एटलीस्ट? साक्षी बताइए। ओके, सही है। अनामिका आप बताइए। वेस्टर्न मैम पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स, एवरग्रीन अंडमान फॉरेस्ट। निकोबार, लक्षद्वीप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यस, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है कहाँ? मैंग्रोव थोड़ी मिलेगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ही कम जगह पाया जाता है और सिर्फ जहाँ डेल्टाज होते हैं वहाँ पर। ये पूरे मैंने कहा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स मतलब कि वो लैंड एरिया है, जबकि जो मैंग्रोव है वो पानी में पाए जाते हैं। जहाँ पे भी पानी होता है पानी में ही उसके रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, पानी में ही वो उनका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इतना मैंने स्टार्टिंग में बताया, पूरा मैप दिखाया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट ही पाया जाता है। देन साल टीक, ये किस पार्ट है स्पीसीज पाई जाती है? साल एंटीक, साल एंटीक। नहीं पता? हाँ बताओ साक्षी, बताइए। मैम ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट। Okay, correct. So now I'm going to take your attendance.